सो यूनिट नंबर 2, यहां पे हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ स्केलर फील्ड, है ना। द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ स्केलर फील्ड, दिस इज आवर नथिंग बट मेन टॉपिक जो हम लोग कवर करते हैं इसके अंदर। यहां पर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, सपोज इफ आई हैव अ फंक्शन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सपोज इफ आई हैव फंक्शन f फ्रॉम Rn to Rm. Suppose if my both n and m equal to 1, I call this function as रियल थोड़ा अलग लिखा मैंने, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन रियल वेरिएबल। Suppose if my this n is equal to 1 and m is equal to some number which is greater than 1, समथिंग ग्रेटर देन 1, देन इसका जो आउटपुट है वो वेक्टर है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑन रियल वेरिएबल। But these two are not of our concern. I am concerned with whenever my n is greater than 1 and m is equal to 1. Such kind of functions are called what? Yes, I was interested in this word only कि भाई स्केलर फील्ड किसे कहता है ना। सो दिस आर नथिंग बट स्केलर फील्ड फॉर अस, यानी कि स्केलर फंक्शन। वेक्टर फील्ड किसे कहेंगे? इफ माय n is greater than 1 and m is greater than 1, these are called वेक्टर फील्ड्स। हमारा मेन कंसर्न होगा इसके ऊपर बात करना कि भाई स्केलर फील्ड है अगर मेरे पास, उसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करें। तो सबसे पहली चीज, सपोज इफ आई हैव अ फंक्शन f फ्रॉम r to r, then I say that my f is differentiable at x naught if and only if my limit x tends to x naught, f of x minus f of x naught divided by x minus x naught exist. This thing should exist. Also in terms of h, I can write this as what? Limit h tends to 0, f of x naught plus h minus f of x naught divided by h. This thing should exist. ये जो भी लिमिट है that should exist. बट जब हम लोग किसी स्केलर फील्ड में आते हैं तो ऑलरेडी मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था कि भाई डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है ना। तो आज हम लोग उसको थोड़ा धीरे धीरे से देखेंगे। सपोज इफ आई हैव अ फंक्शन, नाउ हम लोग थोड़ा माइंड मैपिंग जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, कौन सी चीज किसके साथ रिलेट होती है। कंट्रोल जेड, हाँ मैंने प्रेस किया, ओके। Yes. So suppose if I have function f from Rn to R, I call this as a differentiable at the point x naught bar. Yes. तो मैं बोलूं उससे पहले एक बार आप अपने आप को आंसर दे दो। डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट बार क्या होता है? A function, a scalar field is differentiable at a vector x naught bar if there exist two things. There exists a linear transformation. Yes, error function. A linear transformation and error function should exist which satisfy a particular condition. That condition I'm going to write, I will write f of x naught bar plus h bar minus f of x naught bar. You should remember this equation very well because this is nothing but the base of everything that we learn is this course. Then over here I have t x naught bar h bar plus the error function, where this error function depends on both h bar and x bar. Also, this error function divided by h bar should converge to 0. यहां पे नॉर्म होना जरूरी है, वो भी ध्यान रख देगा। whenever my h bar converges towards 0. This is something that I have already discussed in the class. But
student can even observe, I can write as a definition also for the given case. This given thing is actually equivalent to saying that my limit h bar tends to 0 bar, f of x naught bar plus h bar minus f of x naught bar minus t of x naught bar h bar divided by norm of h bar would be equal to 0. Is it true? थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो. दिस इज एन ऑब्जर्वेशन दैट स्टूडेंट शुड हैव मेड. अगर किन्होंने नहीं किया तो उसको लिए मैं करके दे रहा हूं. ट्राई टू सी. हम लोग जो डेफिनेशन सीख रहे थे और अभी जो मैंने ऑरेंज में लिखा है वो दोनों सेम चीज है क्या? इज इट ओके? ये दोनों सेम चीज है. Yes, everybody should observe this. They are actually the same thing. Because मैंने चेंज क्या किया, मैंने जो एरर फंक्शन था ना उसकी जगह पे उसका वैल्यू निकाला. उसकी जगह पे ये इक्वेशन में मैंने एरर फंक्शन का सिर्फ वैल्यू डाल दिया. एरर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे ये एडिशन में, तो वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में होगा. करेक्ट? आई जस्ट डिड दैट मच एंड आई गॉट दिस. क्यों किया? बिकॉज वी हैव द सिमिलर डेफिनेशन इन R2R. तो मैंने एक सिमिलर डेफिनेशन स्केलर में भी बनाने की कोशिश. इज इट फाइन? हाँ जी, ठीक है ये. ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट डेफिनेशन. उससे पहले हम लोग ने ये देखा कि भाई स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है. वी हैव सीन दिस थिंग. बट व्हेनेवर वी से दैट माय f is differentiable at x naught, there was a beautiful theorem that we have done. What was that theorem? मैं उसको स्टेट करना चाहूंगा. मुझे डिफरेंशियबिलिटी याद आती है, सबसे पहली चीज मुझे याद है कि डेफिनेशन क्या है. जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद आती है वो मुझे ये बताती है कि ये जो डेरिवेटिव होता है उसे हम लोग टोटल डेरिवेटिव कहेंगे. एंड दिस टोटल डेरिवेटिव, इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक. इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक. यानी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है विच इज डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन उसका टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और हर किसी को सेम आंसर आना चाहिए. ठीक है? सो व्हाट वाज दैट थ्योरम? आई जस्ट राइट दैट थ्योरम. इफ द टोटल डेरिवेटिव exist, then it is unique. If it exists, तो हर किसी को सेम आंसर आना चाहिए. जैसे मैंने ये टोटल डेरिवेटिव लिखा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. टोटल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव में फर्क क्या होता है? यानी कि इफ आई गिव यू, यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं. क्या लिख रहा हूं? कि भाई किस तरीके से लिखा जा रहा है ना. व्हेनेवर आई राइट f डैश x नॉट बार comma h bar, what does this mean? This means I am taking derivative of f at the point x naught bar in the direction of h bar. This is nothing but the derivative of the function, which is actually same as the total derivative of the function. यानी कि डेरिवेटिव कहूं या फिर मैं टोटल डेरिवेटिव कहूं, दोनों सेम होता है. एंड which is same as what? What is the formula to find out derivative or total derivative? Let me know in the chat box. What is the formula to find out derivative or total derivative? चलो चलो. Yes, it is summation वाला या लिमिट वाला? डियर, लिमिट वाला ऑलरेडी लिख लिया हम लोग. ठीक है. समेशन वाला दैट इज सेम एज अ इनर प्रोडक्ट वाला. मुझे इनर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला चाहिए. ठीक है? बिकॉज इनर प्रोडक्ट को एक्सपांड करोगे तो यू विल गेट दैट समेशन. ओके. Inner product of h bar and gradient of x naught bar. Gradient of f at what point? x naught bar. Correct? Yes, this is correct. So student should make sure कि कहां पे h bar है, कहां पर x naught bar. You should remember that अच्छे से. जैसे ये आया फिर याद आ रहा था कि नहीं सर ने तो और भी बहुत कुछ बड़बड़ किया था. क्या था भाई? कुछ तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी बोलते थे, कुछ पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते थे, बहुत सारी चीजें की थी. बिफोर वी गो ऑन टू इट, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ बेसिक एग्जांपल. मैं जैसे एग्जांपल लिखता हूं आपको उसको सॉल्व करना है, बट आंसर चैट बॉक्स में 1 मिनट के बाद देना. I will tell you तभी आंसर देना, because I want everybody to solve those questions.
ठीक है, एंड आई वांट टू चेक कि आप उतने टाइम में कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. ठीक है, सपोज इफ आई हैव अ फंक्शन f x y z given by x square plus y plus z, then what is the total derivative at the point 1 1 1 in the direction of 1 2 1? Yes. So it is 45 46 को I'll let you know कब आंसर देना है, but everyone should calculate this फटाफट से. I have given the function, you are supposed to find the total derivative. आंसर लिख के रखो चैट बॉक्स में, बट डोंट शेयर इट. Yes, now you can share the answer. What is the answer? Yes, it is 2 Afreen. ये कैसे? How is it possible? 2x plus 3 आंसर कैसे दिया मुझे? Dear, you see that carefully. बाबा क्या कर रहे हो सब लोग? टोटल डेरिवेटिव है, दोनों पॉइंट मैंने दे दिया तो आंसर एक नंबर होना चाहिए था ना. वाह, कितने अच्छे अच्छे आंसर मुझे मिल रहे हैं यार. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. सो सब पहले तो ये देख लो कि भाई करना क्या है. सो दिस इज एक्चुअली यू आर सपोज टू गिव मी इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 2 1 with gradient of the function at 111. ठीक है, तो सबसे पहला काम करना था, आपको ग्रेडियंट निकालना था. हीरालाल जी छोटू सा मिस्टेक कर रहे हो. जब कभी भी आप टोटल डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव निकालते हो, तब आपको उसको यूनिट वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है. यूनिट वेक्टर कब बनाया जाता है? जब हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ते हैं. ठीक है, इन नॉर्मल डेरिवेटिव हम लोग वेक्टर को एज इट इज यूज करते हैं. ठीक है, दिस इज अ मिस्टेक जो आपने, अगर मैं 50 स्टूडेंट को पूछूंगा ना, तो उसमें से 30 स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है कि मैंने अगर टोटल डेरिवेटिव बोला ना, फिर भी उन लोग यूनिट वेक्टर निकालने चाहते हैं. एंड दिस इज अ पॉइंट जब आपका एमसीक्यू में आंसर रॉन्ग आएगा. सो बी केयरफुल व्हाइल वर्किंग ऑन दिस. अच्छे से पढ़ना है. क्या पूछा है? डेरिवेटिव पूछा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव. यू शुड चेक इट केयरफुली, है ना. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करना. So if you see this carefully, first of all I will find out gradient of f is actually nothing but 2x 1 1. अगर मैंने gradient of f at 1 1 1 find out किया, then it is nothing but 2 1 1, and hence the answer is nothing but inner product of 1 2 1 with 2 1 1. So it is nothing but 5 is the correct answer. Very good. महक काला को छोड़ के बाकी सबको 0. ठीक है. Okay, so this is a way to find out. Also there might be the way how you find out the gradient. So suppose if I give you f is given as f of x comma y is given as e raised to x log y. ठीक है, your time start now, it is 48 49 होगा, तब आप मुझे आंसर देना चैट बॉक्स में. What is the gradient of this? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, आई थिंक बहुत इजी है. बता दो आंसर चैट बॉक्स में यार. What is gradient of f? Let me know the answer in the chat box. Okay, so it is e raised to x log y. Very good. So e raised to x log y, ये तो सही है. फिर log y का, yes, very good. So it is e raised to x by y, है ना. ग्रेडियंट निकालें तो आप सब लोग मास्टर हो, तो ये हो जाएगा. तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया? हमने डेफिनेशन देखा, बोला कि अगर टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है. अगर
ये हो जाने के बाद टोटल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला और दो बेसिक से एग्जांपल्स हम लोग ने दिखे, एक के अंदर ग्रेडियंट से फाइंड आउट किया। बट व्हाट एल्स वी सी द यस, किसी का तो ऑडियो था, कोई कुछ कह रहा है? ओके, कोई नहीं। सो व्हाट एल्स वी सी इन दिस कि भाई आऊंगा आऊंगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव पे आऊंगा, बट उससे पहले मुझे बात करनी है कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स नॉट, डज दिस इंप्लाई my f is continuous at x naught? Yes or no? Yes, but the converse is true. But the converse is not true. हम लोग उस एग्जाम्पल को भी स्टडी करेंगे, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट अभी के लिए जब जैसे मैंने डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट पढ़ा तो ये चीज मुझे स्ट्राइक हुई, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा डेरिवेटिव से आगे बढ़ेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे आएंगे। ठीक है, सो आई नो दैट माई एफ डैश at x naught bar h bar is same as gradient of f at x naught bar with h bar, and now this is nothing but derivative. But if I have norm of h bar to be equal to 1, then my this derivative is nothing but we call it as directional derivative. So we denote it by d, नीचे h bar लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा f x naught bar. यस, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली नयन मैं थोड़ी देर के बाद वही पूछने वाला था कि आप लोग ने मुझे उल्टा बताया था, मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, उससे पहले मुझे थोड़ा लिख लेने दो। यहाँ पर दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स नॉट बार इन द डायरेक्शन ऑफ एच बार। ठीक है, तो जब कभी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव है तभी हम लोग नॉर्म ऑफ एच बार को 1 बनाता है, अदरवाइज सिर्फ नॉर्मल डेरिवेटिव के टाइम पे हम लोग उसको एज इट इज यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई यहां पर मैंने इनर प्रोडक्ट को उल्टा लिखा, सो डज इट चेंज द वैल्यू ऑफ इट? नो, द आंसर इज भाई बिकॉज वी आर वर्किंग इन रियल नंबर्स। In real numbers, if you have xy, it is same as inner product of yx in real case, in real। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर काम करते हैं देन कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है सर, टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यस यस यस, गेटिंग द पॉइंट, दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन। यहां पर क्या होता है कि इनर प्रोडक्ट जो होता है इन रियल केस द बोथ आर सेम, x का इनर प्रोडक्ट विद y सेम एज y का इनर प्रोडक्ट विद x, बट अगर कॉम्प्लेक्स होता देन x का इनर प्रोडक्ट विद y इज सेम एज y का इनर प्रोडक्ट विद x का कॉन्जुगेट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने अभी इनर प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा है इससे पहले? आई थिंक नहीं पढ़ता, यस पढ़ा है ना, तो आई थिंक टीवाई तक तो आप सीख ही जाओगे कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी के लिए बिकॉज रियल है इसलिए चलता है नयन, आगे जाके फिर ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर ने तो बोला था सही था, कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, बट हम लोग कहां पर है, हम लोग ने ये देखा डेरिवेटिव के अंदर अगर डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बना दिया जाए तब वो बन जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि इन दिस केस द फॉर्मूला इज सेम बट वी मेक श्योर द डायरेक्शन इन विच वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव शुड बी अ यूनिट वेक्टर। यानी कि सपोज अगर h बार इज एन एनी वेक्टर तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, आई विल डिवाइड इट बाय नॉर्म ऑफ h बार। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग नॉर्म ऑफ h बार से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब भाई मैंने बोला कि भाई वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। नाउ इफ द डायरेक्शन is the unit vector in some coordinate axis, then it is called partial derivative. Coordinate axis, then it is called partial derivative. है ना, तो अगर मेरा डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के टाइम में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में विथ यूनिट वेक्टर
जो h बार है वो एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दैट इट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. कैसे लिखते हैं हम लोग? दिस x f x नॉट बार. अगर मैं इसकी लिमिट डेफिनेशन लिखना चाहूं, सपोज आई एम वर्किंग ऑन r2 to r, f is from r2 to r, then I write it as limit epsilon tends to 0 f of, यहां पे मैं लिखूंगा x नॉट बार, यहां पे मैं लिखूंगा x नॉट बार प्लस epsilon टाइम अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x minus f of x naught bar divided by epsilon. This is nothing but a limit definition for partial derivative in the direction of x. अगर y होता तो 1,0 की जगह पे 0,1 लिखते. बट लिमिट वाले क्वेश्चंस आप करो ना करो, बट सपोज इफ द फंक्शन हैज बीन आस्क्ड f of x, y, वापस एक क्वेश्चन देता हूं, आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा, आपको मुझे उसका पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढ के निकाल के देना. ठीक है, सपोज इफ आई हैव f of x, y given as log of x plus y, then find f of xy. What does this mean? This means सबसे पहले आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, फिर निकालने के बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है. ठीक है, इसको पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, ऐसा भी पढ़ सकते हो. We will learn about this after this internal in detail. बट सपोज मैं ये कहता हूं कि आपको ये फाइंड आउट करना है f of xy, यानी कि पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लो और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y लो. लेट मी नो द आंसर इन दिस केस. द फंक्शन इज f of xy is same as log of x plus y and you are supposed to find out f of xy, मतलब कि पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y. 56 हुआ, 57 को आप आंसर कर सकते हैं. नहीं, so if you see fx, कुछ तो मिलेगा, जो मिलेगा उसका यू आर सपोज टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो f of x. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. यस, सो नाउ यू कैन आंसर. चैट बॉक्स में आंसर दीजिए. बड़ा है क्या? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? इट इज 1 by x plus y. अब जो मिला उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, सो इट इज यस, इट इज -1 by x plus y का स्क्वायर. इज इट ओके एवरीबॉडी? यस, वेरी गुड. सो ये हो गए, हमारे क्या सीख लिया कि भाई टोटल डेरिवेटिव नॉर्मल डेरिवेटिव सेम होता है, उसका फॉर्मूला. अगर टोटल डेरिवेटिव में डायरेक्शन इज अ यूनिट वेक्टर देन वी कॉल इट एज अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डायरेक्शनल डेरिवेटिव में अगर डायरेक्शन स्पेशल है कुछ, तो मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है. और एक एग्जांपल देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला, बहुत ही बढ़िया सा. अब हाँ, एग्जांपल. हम लोग को पता था कि भाई कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी. वी हैव लर्न अ ब्यूटीफुल फंक्शन व्हिच वाज गिवन बाय y by mod y square root of x square plus y square. This is the case if my y is not equal to 0, and if my y is equal to 0, then we consider it to be 0. Correct? So now this function के बारे में मुझे आप बताओगे, क्या इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू 0,0 एग्जिस्ट करता है? Does this thing exist? सोच के बताओ. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एट 0,0, क्या वो एग्जिस्ट करता है? Every example that I have covered in the class, you should know very well about them, their properties. What is that? What are their property? Is it continuous? Is it differentiable? You should know it. एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे क्या? नहीं ना, बिकॉज दिस आर स्पेशल फंक्शन. जो भी मैंने क्लासरूम में कवर किया, बहुत ही कम एग्जाम्पल हम लोग कवर करते हैं क्लासरूम में. So you should know each one of them. The answer is yes. This exists even
my partial derivative with respect to y at 0, 0 exists. Yes, हम लोग ने ये भी देखा था कि this function का partial derivative with respect to x exist करता है, y भी exist करता है. My f is even continuous at 0, 0, but this function is not differentiable at 0, 0. बिकॉज हम लोग ने देखा था कि अगर हम लोग नॉर्मल लिमिट डेफिनेशन से अगर उसका आंसर निकालने जाएंगे तो कुछ अलग आता है और फॉर्मूला यानी कि इनर प्रोडक्ट से कुछ आंसर अलग आता है. इन व्हाट सेंस हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने इनर प्रोडक्ट से उसका कुछ तो एक आंसर लाए थे, फिर बोला था कि एरर फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है ना. अगर दैट इज द आंसर देन एरर फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होता, हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी एग्जांपल मैंने क्लासरूम में किए हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर देम वंस. बिकॉज अगर एग्जाम में उसमें से कुछ आता है तो सॉल्व करने बैठोगे तो फिर एग्जाम खत्म हो गया. क्वेश्चन को देख के यू शुड नो कि हाँ ये फंक्शन हमने किया था तो ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है, यू शुड इजीली ऑब्जर्व इट. ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल मैंने क्लासरूम में कवर किए थे. यस, और क्या किया था मैंने, एक आर वाला किया था, आर ऑफ डिफाइन फ्रॉम R3 to R3 बाई आर ऑफ आइडेंटिटी था वो, आर ऑफ XYZ इज सेम एज XYZ. फिर मैंने स्मॉल r डिफाइन किया था, द स्मॉल r इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ कैपिटल R. देन वी हैव लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, है ना. इसकी प्रॉपर्टीज हमने की थी, क्या थी वो प्रॉपर्टीज. सबसे पहली चीज हमारा ऑब्जर्वेशन था कि इफ आई टेक ग्रेडियंट ऑफ r देन it is unit vector in the direction of x, in the direction of r of xyz. उसके बाद हम लोग ने और भी कुछ चीज की थी, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू n. क्या होता है प्लीज चैट बॉक्स में बता दो, व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू n. yes it is into r. yes, this is right. so it is n r raised to n minus 2 times capital R, है ना. और एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग ने देखी थी, इफ my this is a r, there exists a scalar field such that my gradient of f, there exists a scalar field f such that my gradient of f is same as r, है ना. हम लोग ने वो भी ऑब्जर्व किया था. बहुत ही बढ़िया सा एक फंक्शन है हमारे पास जिसकी तीन प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी क्लासरूम में. नाउ सपोज इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, my f defined it from r to r given by f of x is equal to norm of x. ये फंक्शन थोड़ा स्पेशल है बिकॉज एट 0 f is continuous, yes or no. at 0 this function is continuous, but क्या वो डिफरेंशिएबल है, this function is differentiable at 0. no, but not differentiable at 0. Similarly, suppose if I define f from R2 to R given by f of x comma y is same as sum of the mod value. So it is mod of x plus mod of y. Then इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x at 0, 0 क्या एग्जिस्ट करता है. Is the partial derivative of this function exists at 0, 0. yes, किसी ने पढ़ा ही नहीं है, वेरी गुड. एग्जाम्पल क्यों पढ़ने का, एग्जाम्पल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एवरी वन ऑफ यू शुड नो इट वेल, है ना. फिर एग्जाम में गेस नहीं करना है, नहीं सर नहीं होता है, राइट. सो दिस पार्शियल डेरिवेटिव एट 0, 0 डज नॉट एग्जिस्ट. हमने बताया था कि उसके दो वैल्यू आ रहे थे प्लस और माइनस 1, आप लोगों ने सॉल्व किया था. डज नॉट एग्जिस्ट. यस, ठीक है. सो there are multiple other example. It would be your duty now to see each of the example and study them well. ठीक है. After this
we have covered the concept of gradient, how to find out the gradient and the properties of the gradient. So let us just discuss them once. Suppose if I have the two scalar field f and g are scalar fields, and I just see what is gradient of f plus g. This is same as gradient of f plus gradient of g. यानी कि जो हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरा ये ग्रेडियंट भी सेटिस्फाई करेगा. Similarly, my gradient of f into g, if I have f into g, then it would satisfy f time gradient of g plus g times gradient of f. And then I have gradient of f by g, same formula, u by v ka formula divided by g square. Start with g, it is gradient. There is some notification on my end. वीडियो सही से दिख रहा है आपको? Yes, I think so. Yes. मुझे कुछ तो नोटिफिकेशन आया, हाँ, बट यस इट इज फाइन. ओके, सो नो इशू. मुझे लगा कि नेटवर्क गया बट कोई नहीं, चलो ये भी हो गया. इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी. इफ माई एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, then what is gradient of f? What is gradient of f then? It should be a zero function. It should be a zero function. मैंने यहाँ पे 3 equal to क्यों लिखा? Because I want to indicate it is equivalent to a zero function. ठीक है, because gradient is a function, it is a vector field gradient. मैं equal to zero नहीं लिख रहा हूँ. I am writing it is equal to big zero. Big zero मतलब कि वो it is equivalent to a zero function. Whatever input you put, output is always zero. ठीक है. So also by using this example, ये जो example इतना important मैं बार बार क्यों कहता हूँ? Because in this example, what we learn that in this example, both the partial derivative were existing at 0, 0, but still it was not differentiable. Then the question arose, what is a sufficient condition for differentiability? So we have discussed that in class. What is a sufficient condition for differentiability? तो मैं इसका एक बार स्टेटमेंट लिख दूंगा तो आप रीड कर सकते हो. A sufficient condition okay, so the sufficient condition was my partial derivative should exist in the neighborhood of it, and the partial derivative should be continuous at that point. So I just write if the partial derivative d1f d2f dot dnf exist in a neighborhood of x naught bar and continuous at x naught bar, then this implies my f is differentiable at x naught bar. Because सारे के सारे partial derivative भले ही exist करते हो at that point, but it may not be differentiable. So what is a sufficient condition? Partial derivative exist होने के साथ साथ they must be continuous at that point as well. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था सफिशिएंट कंडीशन का एक बड़ा सा मैंने थ्योरम आपके साथ प्रूव किया था, बट लकीली और अनलकीली इस एग्जाम में तो वो प्रूफ नहीं है. आई होप कि कॉलेज जल्दी चालू हो जाए और फाइनल एग्जाम में आपको मैं ये प्रूफ पूछ सकूं. ठीक है बट इसके बाद फाइनली हम लोग ने बहुत ही इजी चीज की थी आप लोगों के लिए, वो थी चेन रूल, है ना. इट इज चेन रूल. सपोज इफ आई हैव अ फंक्शन g defined as f gradient with gamma, where gamma is a function which takes a value, so I'll just write those only. Gamma is from I, which is subset of r to rn, and my f is nothing but a scalar field, yani ki it goes from rn to r. So finally what I get, ye g kahan se kahan tak hoga fir? The g is from where to where? After taking that composition, g is from where to where? Yes, it is from R to R, actually more precisely from R to R in this way. Okay. Now suppose if you want to find out the derivative of this at point T,
फॉर्मूला क्या होगा प्लीज चैट बॉक्स में बता दो. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल. हाँ तारा जी, क्या लिखा आपने? It will start from this gamma, so it will start from R, will go till Rn, फिर F अप्लाई होगा तो वो Rn को R में लेके जाएगा. Correct? So you started with R, you ended with R. Yes, okay. Now, what is the formula for the this derivative? Chain rule का derivative. Inner product of gradient of F at gamma of t times gamma dash of t. Okay, this is nothing but the formula of finding out the chain rule in scalar field. But chain rule का एक एग्जांपल करना मुझे लग रहा है कि वैलिड होगा इस पॉइंट पे. सपोज इफ आई गिव यू f of xyz to be given by x square plus y plus z square, where my x of t is given by root t, y is given by e raised to t, y of t is given by e raised to t, and z is given by suppose t. Then I will ask you to find out f dash, यानी कि f dash at t. So suppose you are supposed to change it by the way, but I can write in this way also. कैसे फाइंड आउट करोगे? द वन वे इज टू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले ग्रेडियंट निकालोगे, फिर उसके अंदर गामा ऑफ टी डालोगे, फिर गामा डैश ऑफ टी निकालोगे. व्हाट इज योर गामा ऑफ टी? गामा ऑफ टी इन दिस केस इज नथिंग बट दिस कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इट इज रूट टी ई रेज टू टी फिर टी. अगर आप इस फॉर्मूला से एमसीक्यू सॉल्व करने चाहोगे तो 3 दिन लगेगा और फिर एग्जाम सब खत्म होने के बाद आप आंसर टिक करने आओगे, है ना. इतना टाइम नहीं है आपके पास. सो यू शुड यूज योर लॉजिक. लॉजिक यूज करो कि भले ही चेन रूल है आप डायरेक्टली उसको सब्स्टिट्यूट करो. यानी कि आप क्या करो, सपोज इफ दिस इज रिक्वायर्ड यू जस्ट फाइंड आउट दिस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ टी. एक्स की जगह पे उसका वैल्यू डाल दो. सो इट इज नथिंग बट रूट टी का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे उसका वैल्यू प्लस दिस इज टी स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट टी प्लस ई रेज टू टी प्लस टी स्क्वायर. अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए ना, तो फटाक से निकाल दो. एफ डैश ऑफ टी दैट इज नथिंग बट 1 प्लस ई रेज टू टी प्लस 2t. हाँ जी बोले ना, किसी ने कुछ तो सर ऑडियो था क्या किसी का? एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क. समझा मैंने क्या किया यहाँ पर? यू विल गेट द सेम आंसर इफ यू यूज द फॉर्मूला. सर वो कोऑर्डिनेट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? ना 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 ना, यू कैन नॉट चेंज इट. यू शुड यूज द सेम ऑर्डर व्हिच इज ओवर हियर. यहाँ पे जो है ना सेम ही ऑर्डर यू आर सपोज्ड टू यूज. इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, मैंने एक्स वाई जेड क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे मेरा फंक्शन भी एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट में था, है ना. बिकॉज क्या होता है ना डियर, व्हाट हैपेंस सपोज इफ यू चेंज द ऑर्डर, व्हाट विल हैपन सपोज इफ आई राइट गामा ऑफ टी टू बी इक्वल टू, मैं ऐसा लिख देता हूं रूट टी टी एंड ई रेज टू टी. फिर क्या होगा, जब मैं एफ ऑफ गामा ऑफ टी देखने जाऊंगा तब मैं एक्स की जगह पे इसको रखूंगा, वाई की जगह पे इसको रखूंगा, जेड की जगह पे इसको रखूंगा. दैट वुड बी रॉन्ग, है ना, बिकॉज एक्स वाई जेड वर समथिंग एल्स. ओके, दैट वाज अ सिंपल रीजन. बट ये समझो, सबको समझा कि चेन रूल किस तरीके से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला. भले ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आई नो, बट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला फॉर एमसीक्यू यू कैन यूज. इज इट ओके? Okay, very good. So now we come to the almost last thing which I said for the portion, that is nothing but a level set. This is level set. Okay, so level set जो था वो क्या था कि suppose if I have a scalar field f from Rn to Rn, if I start collecting all those points, if I start collecting all those points from my domain such that उसके ऊपर f लगाने पर कुछ तो constant आता है, then those collection would be called as my level set at the point C for that function. हम लोग ने इसको क्यों पढ़ा था? बिकॉज हम लोग यहां पे ये कहना चाहते थे कि माई ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट ए बार इज डैश टू द
टेंजेंट प्लेन at a bar to LC। यहां पे क्या लिखना चाहिए? fill in the blank। the gradient of f at a bar is normal लिखूं या फिर orthogonal लिखूं या फिर perpendicular लिखूं, सबका मतलब एक होगा। I use the word orthogonal for now। ठीक है, everybody is okay with this? Yes, okay। और क्या देखा था मैंने? ये दिखाया था कि भाई इस लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था? आई थिंक इतना ही पढ़ाया था ना मैंने। आई जस्ट टीच दिस मच ओनली। और इसके बाद से मैंने बोला था कि इसके बाद का चीज नहीं है पोर्शन के अंदर, बिकॉज इसके बाद मैंने टेंजेंट का आपको इक्वेशन ढूंढना सिखाया था, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पोर्शन। बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट चेक योर नोट्स एंड लेट मी नो इफ समथिंग इज मिसिंग, है ना। आज हम लोग ने जो भी कवर किया ना, एक बार ऊपर से नीचे तक आई विल जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। Okay, so till this there is a portion. Finding out equation of a tangent is not a part of a portion. That part was easy, but मैंने पहले ही बोल दिया ना, उतना portion था तो उतना ही है। ठीक है, you can read it, किसने ना बोला, है ना। Finding out the equation of tangent is easy, but यहां तक portion है आपको। ठीक है, I'll just scroll from up to down, कुछ मिस हुआ रहेगा आपका नोट्स चेक करते रहो, except example that you have to cover। कॉन्सेप्ट में कुछ मिस रहा तो मुझे बताओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो थे, स्केलर फील्ड क्या, वेक्टर फील्ड क्या, फिर नॉर्मल डिफरेंशिएबिलिटी, अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेफिनेशन, आज मैंने उसको आपको इक्विवेलेंट वे भी बताया। फिर हम लोग ने ये देखा टोटल डेरिवेटिव इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। फिर वहीं पे हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था, फिर उस फॉर्मूला को दो जगह पे एग्जांपल में दिया। यूनिकनेस ऑफ टोटल डेरिवेटिव इज वी गिवन ना तारा जी। If total derivative exists then it is unique। yes sir, एक डाउट है, बोले ना। हाँ जी आफरीन। हाँ डियर डियर डियर, शॉर्टकट में क्यों फाइंड आउट करना? यूनिकनेस ऑफ अ लिमिट शॉर्टकट में मींस व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल? ये अच्छा, यूनिकनेस ऑफ लिमिट शॉर्टकट देयर इज नो वे डियर, देयर इज नो वे। अगर आपको एग्जांपल ऑलरेडी पता है, हाँ हाँ सॉरी, देखो इफ सपोज फॉर एन एग्जांपल बीइंग प्रैक्टिकली ट्रू, आई विल नॉट आस्क यू टू फाइंड आउट लिमिट वे में। अगर सपोज मैंने आपको टोटल डेरिवेटिव पूछा है, दैट मींस इट एग्जिस्ट, है ना। इफ इट एग्जिस्ट इट इज सेम, लिमिट फॉर्मूला से ढूंढो या फिर ये फॉर्मूला से ढूंढो, आंसर सेम आता है। देन व्हाई यू विल गो फॉर दैट लिमिट फॉर्मूला इफ यू हैव दिस इजी फॉर्मूला, है ना। गेटिंग द पॉइंट? हाँ हाँ अच्छा ओके ओके, यू आर आस्किंग मी फॉर यूनिट 1। ओके ओके ओके, सो यस यस यस, देयर इज बहुत जगह पर मैम ने कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने भी बोला है, और कई बार मैम ने सॉल्व भी करवाया, मतलब विद द फार्मूला, सो इट इज बिकमिंग लेंथी, सो इज देयर एनी शॉर्ट वे ऑफ? ना ना ना, इन मैथमेटिक्स एक कोई ऐसी चीज नहीं होती जो हर बार काम करेगी। इट माइट बी in some situation there are some trick that will work, in some situation मैं जो आपको बोलूँ वो शायद काम कर, when you see the function sometime वो काम कर जाता है ट्रिक, sometime नहीं करता। but the best way at this particular time is you just go through each and every example that has been covered in the class or in the practical। अगर आपने ऑलरेडी उस फंक्शन को एक बार देखा है तो आपको उसको जल्दी से हो ही जाएगा फॉर श्योर। एंड आई जस्ट गॉट योर डाउट अभी कि आपने क्या बोला, है ना। देयर आर क्वेश्चंस, आई नो कि यूनिट 1 के अंदर क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, सो इतने डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, यू ऑब्जर्व इट, शॉर्ट ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट जितना भी क्लासरूम में कराया है उसको प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाए, है ना। देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक। हाँ बोले ना। चेंज किया, मतलब अगर इफ आई हैपन टू डू y टेंड्स टू b फर्स्ट एंड देन आई डू द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, तो मुझे आंसर मतलब वैसे निकाल सकते हैं क्या? इट हैज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंक्शन f, वापस से उस फंक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट यूजुअली चेंज द ऑर्डर ऑफ द लिमिट, है ना। जो फंक्शन है ना, व्हाट हैपेंस आर डियर, यू जस्ट वो जो आप बोल रहे हो ना क्वेश्चन, उसको मुझे शेयर करो,
once I'll see the question I'll let you know, है ना. Normally we cannot change the order unless the function satisfies some criteria in anywhere, है ना. order जो होता है ना, it is always important the way you are changing the function. It might be possible कि function कुछ अजीब behave करे if you change the limit. So it is always important कि function किस तरीके से define किया गया है. ठीक है. You share me the question, I'll just see the question. आज के आज मैं आपको आंसर दूंगा उसका. ठीक है. सर हाँ बोले ना, कोई इशू नहीं. सर वो डेल्टा एप्सिलॉन वाला डेफिनेशन है ना, एप्सिलॉन डेल्टा, हाँ क्या कहता है वो. सर आप एक क्वेश्चन आप उसका करा दो ना प्लीज. डियर क्या है वो, क्या एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ दिस लिमिट. यस यस सर, लिमिट ऑफ स्केलर वैल्यूड फंक्शन में है वो x minus a norm of x minus a less than delta implies f of x minus n is less than epsilon. तो उसमें सर आप एक एग्जांपल प्लीज करवा. मैं उसका सॉल्यूशन आपको लिख के भेजू डिटेल में. ओके फाइन सर. ओके. एनी वन क्वेश्चन. हाँ मुझे आप शेयर करो, मैं सॉल्यूशन शेयर करता हूँ आपके साथ. ठीक है. सर क्योंकि यूनिट 1 में थोड़ी क्वेश्चंस है ना जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे मुझे, सो आई वांटेड इट टू बी क्लियर फ्रॉम योर साइड. मतलब आपसे एक्सप्लेनेशन मिलता है थोड़ा इजी होता है. कुछ ऐसा नहीं है. चलो लेकिन मुझे भेज दो, मैं करके देता हूँ. बट यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रेट करता है हम लोग यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर क्या क्या कवर किया था इन दिस सेक्शन. हम लोग ने डेफिनेशन, उसका इक्विवेलेंट, यूनिकनेस ऑफ टोटल डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला, एंड डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटीन्यूअस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना सर. पोलर कोऑर्डिनेट वाला भी